عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے گو ہتیا کرنے والوں کو بچانے کے نام پر پولیس افسران کو جو ہے نکال باہر کر دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے۔ گلبرگہ میئر الیکشن میں جے ڈی ایس اور کانگریس مل کر کے جو ہے وہ بی جے پی کو جھٹکا دیا ہے، تو گجرات کے وزیر اعلیٰ وجے روپانی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو کس طرح سیاست میں ہلچل مچی ہے، اور ادھر ایک مندر کو گرانے کا ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کس طرح کانگریس نے بی جے پی کو آڑے ہاتھ لیا ہے، اور بھی بہت ساری خبریں ناظرین گرامی جو الگ الگ علاقوں سے آئی ہوئی ہیں۔ دو اہم ترین جو آزاد میڈیا ادارے ہیں اس پر کس طرح سرکاری ایجنسیاں چھاپہ مار کارروائی کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی بی جے پی لیڈر رادھا موہن سنگھ نے اسد الدین اویسی کو وائرس کہہ دیا ہے اور ویکسین تیار کرنے کی بات بھی کہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیان بھی اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ تو کس طرح سے الگ الگ علاقوں میں یہاں تک کہ جو ہے گنیشا کو بھی نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے جو ہے آر ایس ایس کے لباس اس کو پہنا دیا، جس کے بعد یہ تصویر بھی بڑے اس وقت جو ہے سرخیوں میں آ رہی ہے۔ اور غازی آباد دلی کے کیا صورتحال ہے اس وقت، اور گجرات کا اصل ماڈل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ برسات کے موقع پر کس طرح کانکریٹ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور افغانستان کی تازہ اپڈیٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیا، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاؤں جو گزشتہ 2 دن سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ہے میسور کے ننجنگوڈ میں ایک مندر کو جو ہے منہدم کرنے کی یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو ڈھہنے کے بعد الگ الگ طرح کی جو ہندو تنظیموں نے جہاں پر بی جے پی حکومت کو جو ہے اشارے میں، جبکہ کھلم کھلا تو تنقید نہیں کرنے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اور پارٹی کرتی تو آر ایس ایس اور وی ایچ پی، بجرنگ دل اور ہندو رکشنا ویدی کے نہ جانے کیسی تنظیمیں سب جو ہے راستے پہ نکل جاتی، اور جب تک جو ہے پوری حکومت کو یا اس میں وابستہ لوگوں کو دیش دروہ اور غدار وطن اور پاکستان جانے تک نہیں چھوڑتی۔ لیکن چونکہ بی جے پی کی حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت میں اس مندر کو گرایا گیا ہے، اور وہ بھی میسور کے ننجنگوڈ کے ایک تاریخی دیوستھان کو، مندر کو، تو جو اس پر کوئی بی جے پی کا کارکن بھی نہیں بول رہا ہے اور کوئی ہندوتوا تنظیمیں بھی سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن جو ہے کانگریس نے لگاتار، بلکہ سدھارمیہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں کرناٹک کے، انہوں نے جو ہے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے اگر یہ کسی اور حکومت میں ہوتا تو کیا کیا جاتا، اور اس طرح سے جو ہے ہم مندروں کو گرانے نہیں دیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس وقت جو ہے بی جے پی سرکار کو صاف طور پر کہا کہ خود جو ہے اس وقت جو ہندوؤں کے نام پر حکومت کرتی ہے، وہ جو ہندو کے دھارمک احساسات کو جو ہے اس وقت پوری طرح سے جو ہے گرانے کی کوشش کر رہی ہے، تکلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی آج سوشل میڈیا میں ایک اور جو ہے تصویر وائرل ہوئی، اور اس تصویر کو آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھ لیجئے، آج کل گنیش چترتھی یعنی گنیش ہبا یعنی تہوار کا جو سلسلہ جاری ہے پورے بھارت میں۔ 8، 15، 20 دن تک یہ ہبا جاری رہتا ہے مختلف ریاستوں میں، بالخصوص کرناٹک اور ادھر کے علاقوں میں بہت زیادہ زور و شوروں سے منایا جاتا ہے یہ تہوار۔ لیکن اس بیچ میں اس کے اپنے بھگوان جو ہندو لوگ کہتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی جو ہے چڈی اور جو آر ایس ایس کا لباس ہوتا ہے، شناختی لباس، وہ پہنا دیا ہے، جس کو لے کر کے اس وقت بہت زیادہ جو ہے آر ایس ایس کی اور ہندوتو تنظیموں کی کھینچا تانی ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی کوئی اور کرتا تو جو ہے نہ جانے کس طرح کے احتجاجات کر کے کیا کچھ کہہ دیتے، غنڈہ گردی پہ ادھر آتے، دہشت گردی کرتے، راستہ روک لیتے، احتجاجات کرتے، لیکن یہ خود جو ہے اس وقت بھگوانوں کی توہین کر رہے ہیں، ہندو بھگوانوں کی، اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہہ کر کے اس وقت یہ تصویر بھی سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہوئے ہندوتوا تنظیموں کو، بالخصوص سنگھ پریوار کو یعنی آر ایس ایس کو تنقید کی زد میں لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے غازی آباد کی ان تصاویر کو تھوڑا دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہاں پر جو ہے ایک شپرا سرشٹی جو سوسائٹی ہے اس کے قریب دیکھیے کہ جو ہے اس وقت
यूपी के तरक्यात के सिलसिले में मुँह बोलती तस्वीर है। इस वक्त जो है पूरी तरह सड़क धंस गई है और यहाँ पानी खड़ा हुआ है। आने जाने वाले लोगों के लिए रोका जा रहा है। ये है यूपी की तरक्यात की ज़मीनी हालात। इसके अलावा आइए बात करते हैं गुजरात मॉडल की। क्या आपने कभी सुना है कि बरसात में कंक्रीट डाला गया हो या फिर जो रास्ते में गड्ढे पड़ जाते हैं उसको पुर करने की कोशिश हुई हो? लेकिन दुनिया में तो हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन गुजरात मॉडल को जिस अंदाज में पेश किया गया उसी रियासत में ये मंज़र आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से बरसात हो रही है, रास्ते में पानी जमा है और यहाँ पे कंक्रीट डाला जा रहा है। अब समझ में नहीं जा रहा है कि कंक्रीट पानी में बह कर के चला जाएगा या वहीं पर फंस करके रह जाएगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए किसी ने लिखा कि वाकई में गुजरात मॉडल को देख करके हैरानी हो रही है और यही मॉडल को दिखा करके जो है पूरे भारत पर कब्ज़ा किया गया है कुछ लोगों की जानिब से। ये कहते हुए इस तस्वीर को, इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेवकूफ़ी की किस कदर इंतहा है कि बरसात में और जमा पानी में जो है कंक्रीट डालने की कोशिश हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और हम लोग दिल्ली के मॉडल का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे रास्ते में इस वक्त जो है तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं मूसलाधार बारिश की वजह से। अब कहाँ रास्ता फंसा है, कहाँ पे जो है ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ समझ में नहीं जा रहा। लेकिन बच्चे इसका खूब मज़ा ले रहे हैं, इस वीडियो से आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोस आई हैं। ये देखिए, एक ही बरसात में तालिबात को किस तरह तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में गुजरते हुए पानी तो जो है स्कूल के अहाते तक भी पहुंच गया है। ये हालात है दिल्ली बॉर्डर का। ये भी तस्वीर वहीं से आ रही है, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली के शहरों की, दिल्ली के रास्तों के हालात देख लीजिएगा। आम आदमी पार्टी को ये ज़रूर शेयर कीजिएगा और कहिएगा जो लोग सिंगापुर के और न जाने किस तरह के इलाकों की बात कर रहे थे वहाँ के क्या हालात हो चुके हैं। ये हालात हैं इस वक्त दिल्ली की। जो मुख्तलिफ बहुत सारी तस्वीर भी आई हैं, अलग अलग तरह की वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं कि जो लोग दावा करते थे कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे उनके रास्तों का हाल ये है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर राजधानी भारत की दिल्ली का यह हाल है तो दीगर इलाकों का और देहातों का और वहाँ के रास्तों का आप पूरी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हालत में हैं इस वक्त। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर है गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और तब से लेकर के अब तक लगातार जो है इस वक्त अलग अलग प्राइम टाइम में आप तबसरे भी सुन रहे होंगे, 4 रियासतों में, कर्नाटक में भी वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना पड़ा और इसके अलावा दीगर वहाँ के जनूबी हिंद के और शिमाली हिंद के भी 2 इलाकों में आपने देखा कि रियासतों में किस तरह से जो है अलग से रियासतों का एक ही खाना जंगी की सूरत हाल है इस वक्त मुख्तलिफ़ रियासतों में, जहाँ जहाँ भी जो है बीजेपी की हुकूमत चल रही है। जी हाँ नाज़रीन, अभी ना तो उनके इस्तीफ़े की वजह सामने आई है और ना ही इनकी जगह किसी को वज़ीर आला बनाया जाएगा, इसकी कोई चर्चा है। अलबत्ता जो है बीजेपी के रियासती दफ्तरों में इस वक्त हलचल मची हुई है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में अगले साल असम्बली इंतखाबात होने और 4 साल बाद अगर किसी वज़ीर आला को हटाया जाए या उसको इस्तीफ़ा देना पड़े तो ये उसके गुज़िश्ता 4 सालों के कामकाज पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। गुजरात का ही क्यों जिक्र किया जाए, बीजेपी के ज़ेर इख्तियार अक्सर रियासतों में यही हाल है। उत्तराखंड में 2 वज़ीर आला बदले जा चुके हैं। अब इंतखाबात से चंद माह पहले तीसरे के हाथ में रियासत की बागडोर दी गई। कर्नाटक में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, वहाँ भी नए वज़ीर आला को जिम्मेदारी दी गई, यानी कि येडियुरप्पा को हटा करके इस वक्त जिसकी हुकूमत है आप जानते हैं, अभी कुछ महीने कबल की ही बात है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की खबरें भी खूब गर्म रहीं और बाद में उनको ना हटाने का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश से भी इसी तरह की खबरें आ रही थी जिसकी ज़बरदस्त चर्चा रही। और भी बहुत सारे इलाकों में यही हालत है और जिस तरह से जो है इस वक्त जो है इख्तिदार में मौजूद चेहरों को बदला जा रहा है, उससे साफ़ और वाज़ेह पैगाम पूरे भारत में ये जाता है कि जो है इस वक्त बीजेपी में अंदरूनी खाना जंगी वो अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। लेकिन जो है मीडिया पूरा का पूरा जो है वो चापलूस होने की वजह से इन बातों को सामने नहीं ला रहा है, जबकि अपोजिशन पार्टी में छोटे से भी इख्तिलाफ पैदा हो जाता है तो जो पूरी तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश होती है। नाज़रीन गिरामी, फतेहपुर में ले चलूँगा आपको। यहाँ पर गौ हत्या मुल्ज़िमान को जो है सेफ्टी यानी सिक्योरिटी फराहम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए 4 पुलिस अफसरान को जो है उनके ओहदे से निकाल बाहर कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जानिब से लिया गया फ़ैसला है। जिन लोगों को जो है निकाला गया है, मुअत्तल किया गया है, उसमें सब इंस्पेक्टर शमी अशरफ और उनका साथ देने वाले अनीश कुमार सिंह और जो हवालदार हैं वो मनोज कुमार और राजेश तिवारी,
इन तमाम पर इल्ज़ाम है कि जो है इन लोगों ने कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर कुछ लोगों की जानिब से गऊ को जो है स्मगल करने की या उसको जो है काट कर बेचने की कोशिश हो रही थी। इस दरमियान में जो है मुलजिमान को सिक्योरिटी फराहम करने की कोशिश हुई, इसी के चलते जो उनको निकाल दिया गया, ये बात सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो ख़बर है कि जो है इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जुमा को ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री के कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग अकाउंट्स का जायज़ा लिया है। अफसरान ने मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि कार्रवाई न्यूज़ इदारों की जानिब से टैक्स की अदायगी और लेन देन की रकम से मुतालिक कुछ तफसीलात की तस्दीक के लिए की गई है। हुकाम ने बताया कि कुछ दस्तावेज़ात मौसूल हो चुके हैं, उनका जायज़ा लिया जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की दफ़ा 133 के इल्तिज़ामात के तहत चलाए जाने वाले सर्वे अकाउंट्स का जायज़ा मुहिम में इनकम टैक्स अफसरान सिर्फ कारोबारी कॉम्प्लेक्स और उससे जुड़े कॉम्प्लेक्स का मुआयना करते हैं और रिहायशी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, हालांकि अफसरान दस्तावेज़ात ज़ब्त कर सकते हैं। इस बारे में दोनों पोर्टल या उनके तर्जुमान की तरफ से फ़िलहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन उनके सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार ख़बरें और मज़ामीन अपडेट होते रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है न्यूज़ क्लिक हो या फिर दीगर इदारा, ये जो है आज़ाद इदारे माने जाते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक, और लगातार जो है मरकज़ी हुकूमत की तनक़ीद करते रहते हैं, सच और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। भारत में फ़िलहाल कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि जब भी कोई सहाफ़ती इदारा आज़ादाना तौर पर जो है कोई काम करता है तो उस पर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इल्ज़ामात लगते रहे मरकज़ी हुकूमत पर कि जो है वो ज़बान और क़लम को जो है पूरी तरह से जहाँ ख़रीदने में नाकाम हो जाती है, वहाँ सरकारी एजेंसियों को जो है भेज करके जो है उनको परेशान करने और आसान करने की कोशिश करती है। उसी के तहत, उसी साजिश के तहत इस वक्त जो है न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री को भी जो है पूरी तरह से निशाना बनाया गया है। इस तरह के इल्ज़ामात मरकज़ी हुकूमत पर लग रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो है असुद्दीन ओवैसी को इस वक्त निशाना बनाया गया है। जी हाँ, बीजेपी के कौमी नायब सदर मशरक़ी चंपारण के रुकने पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह ने आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असुद्दीन ओवैसी पर नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मुल्क के लिए बांटने वाला करार दिया और उनको वायरस बताया। दरभंगा में मीडिया एहलकारों के सामने उन्होंने इसी बयान को दोहराया जो मोतिहारी में दिया था। राधा मोहन सिंह ने ये MIM के सरबराह असुद्दीन ओवैसी को वायरस बताते हुए मुल्क को बांटने की तैयारी करने वाला इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो वायरस है और मोदी राज में ऐसे अनासिर के लिए भी वैक्सीन तैयार हो गई है। ऐसे लोगों को चुन चुन कर मोदी जी का टीका लगाया जा। नाज़रीन, याद रहे कि इस वक्त राधा मोहन सिंह दरभंगा में 2 रोज़ा किसान मोर्चा में कमेटी की मीटिंग में शामिल होने दरभंगा पहुंचे थे। वहां उन्होंने दरभंगा रेलवे स्टेशन का जायज़ा लेने के ज़िम्न में मोतिहारी में दिए हुए बयान को दोहराया है। वह नाज़रीन गिरामी, आए थे किस काम के लिए और निशाना किसको बनाया जा रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी लीडरान को, मुसलमान या मुस्लिम लीडरान को जब तक निशाना नहीं बनाते, उनको यह एहसास हो गया है कि जो है उनको पूरी तरह से तवज्जो हासिल नहीं होगी मीडिया की। इस तरह की बयानबाजियाँ कीजिए, मीडिया की तवज्जो लीजिए, फिर वो सुर्खियों में आ जाएंगे और इस तरह से जो है बीजेपी या मरकज़ी हुकूमत में वो कुछ ख़ास बन जाएंगे। इसी के चलते बीजेपी लीडरान अलग अलग तरह के मुसलमानों के ख़िलाफ़ या मुस्लिम लीडरों के ख़िलाफ़ बयान जारी करके जो है अहम ओहदा चाहने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कलबुर्गी मेयर इलेक्शन में जो है बीजेपी को झटका लगा है, यानी गुलबर्गा इलाका जो कहलाया जाता है कर्नाटक का, बरसरे इख्तिदार बीजेपी को झटका देते हुए जेडीएस ने कर्नाटका में कलबुर्गी यानी गुलबर्गा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए अपने मेयर उम्मीदवार को चुनने के लिए कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जेडीएस ने अपने मुंतखब अराकीन को बेंगलुरु बुला लिया है और उन्हें फ़िलहाल के लिए एक रेस्टोरेंट में मुंतकिल कर दिया गया है। कलबुर्गी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में अपोजिशन कांग्रेस ने 55 रुकनी ऐवान में 27 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी होने का सेहरा हासिल कर लिया है। बीजेपी को पहली बार 23 सीटें मिले हैं, जबकि जेडीएस को 4 सीटें हासिल हुई हैं। इस इलेक्शन में जेडीएस किंग मेकर बनकर के उभरी है, लेकिन एक आज़ाद उम्मीदवार भी जीता है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जेडीएस की मदद से बीजेपी बासानी बरसरी इख्तिदार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ज़राए ने कहा कि चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़ाती तौर से जेडीएस सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवेगौड़ा से इस सिलसिले में बात की है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वजह से जो है इस वक्त मेयर का इलेक्शन लड़ने वाला है। अगर जो है जेडीएस इस वक्त बीजेपी के साथ गई तो बीजेपी को मेयर हो जाएगा, और कांग्रेस के साथ गई तो इनके साथ आपसी जो है एक अलग ही तरह के जो फैसले हो सकते हैं लिए जाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ अपडेट्स हम अफ़गानिस्तान से जो फ़िलहाल आई हुई हैं उस पर नज़र करते हैं,
پھر جو ہے آپ سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے طالبان نے کابل میں صدارتی محل پر اپنا پرچم لہرا دیا ہے، اور اس کا منظر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت صدارتی محل پر پوری طرح طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان میں صرف ایک ہی یہودی تھا، زبلون سیمنتوف، اب وہ بھی کابل چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ بیچ میں اس لیے سرخیوں میں آیا ہوا تھا کہ انہیں نے جو ہے ایک بیان جاری کیا تھا کہ وہ افغانستان چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہاں کا جو عبادت خانہ ان کا اپنا ہے اس کی آخر کون حفاظت کرے گا۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ وہ نیو یارک منتقل ہو چکے ہیں۔ ان کا نام زبلون تھا اور یہ افغانستان کے اکلوتے یہودی باشندے تھے۔ ناظرین گرامی، جرمنی نے کابل میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے پر غور کر رہا ہے۔ اس طرح کا بیان جو ہے جرمنی سے سامنے آیا ہے۔ اگر یہ سیاسی طور پر ممکن ہوا اور سیکورٹی کی صورتحال نے اجازت دی تو سفارت خانہ کھول دیں گے۔ یہ بیان جاری کیا ہے جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے، اور اس کی تصویریں اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر افغانستان کے نئے وزیر حج و اوقاف شیخ نور محمد ثاقب نے وزارت کا باقاعدہ چارج سنبھال لیا ہے، اور اس وقت ایک دعائیہ محفل بھی منعقد کی گئی تھی اس چارج کو سنبھالنے سے پہلے۔ ناظرین گرامی، اسپین بولدک میں ایک جگہ ہے جہاں پر پاکستان کو افغانستان سے جوڑتا ہے، یعنی بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کا۔ یہاں سے جو ہے بارڈر کراسنگ کی صورتحال کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں کئی لوگ جو ہے پاکستان جانے کے لیے گیٹ پر جو ہے منتظر نظر آ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی بھی مختلف بارڈرز یا سرحدوں پر جو ہے افغانی کہیں یا جو کچھ کاموں سے جو ہے آئے تھے وہ لوگ جو ہے پاکستان جانے کے انتظار میں ہیں۔ یہ بارڈر والا علاقہ ہے۔ یہ تازہ ترین خبریں آئی تھی افغانستان سے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ اسی طرح ہم لوگوں سے آپ جڑے رہیں، آپ کو وہ خبریں جو زمینی حقائق بیان کرتی ہیں وہ آپ تک پیش کرنے کی سیدھی بات کوشش کرتا رہے گا۔ خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ ادارے کو مالی اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے بھی ضرور مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔